This is Mohawk Mangal, the tragic downfall of Cafe Coffee Day. And I'm guessing this is like an Indian Starbucks. That's the only thing I can get from it. I mean, I would probably go if I was in India to Cafe Coffee Day, but I'll never set foot in a Starbucks here in the US. I freaking hate Starbucks. But I don't know why. If I was in India, I'd see it as different. I don't know why. On a normal day, DG Siddhartha's convoy usually has 2 vehicles, his own and a backup. But on July 29th, when Siddhartha leaves his home in Bengaluru, 2 things are different. First, he's in his Toyota Innov, and second, his regular Ravi is in a Leaf. Therefore, a new driver is driving this vehicle. Before leaving home, Siddhartha calls his family to inform them that he's going to visit. Okay, this is bad. This is really bad. There we go. Better. विजिट करने जा रहे हैं या तो सकलेशपुरा वाला या फिर मुदी That was bad. That was really bad. गेरे वाला दोनों जो चिकमगलुरु इलाके में है पर सकलेशपुरा पहुंचने से पहले ही वो ड्राइवर को बोलते हैं मंगलुरु की तरफ बढ़ने के लिए फिर नेत्रावती नदी पर एक ब्रिज पर वो रोकने को बोलते हैं गाड़ी से निकलते हैं और ड्राइवर को बोलते हैं कि तुम ब्रिज पार कर लो मैं उधर चलता रहूँगा फिर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं जब तक ड्राइवर उनको देख भी नहीं सकता ड्राइवर कई घंटे वेट करता है और जब 8 बज जाते हैं और सूरज भी डूब जाता है वो सिद्धार्थ को कॉल करने की कोशिश करते हैं पर कोई जवाब ही नहीं देता इसीलिए नेक्स्ट दिन एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल करी जाती है DG Siddharth, the founder of India's largest coffee chain, Cafe Coffee Day, has been missing for the last 17 hours. अब पूरे देश में डिस्कशन हो रहा है Did it? Well, obviously it went bankrupt. What the heck is the cat doing up there? The cat's like climbing the wall. It obviously went bankrupt and he just left. I mean, 2 cars. Why take them both? Why get a new driver? I mean, it already seems shady. It probably, like a lot of those things, which are influencer trends, which I'm assuming it was a massive influencer trends. They get a lot of money quickly and then at their peak, they drop because the hype dies with the influence dying out. My guess is he probably sold. कि सिद्धार्थ है कहाँ पर पुलिस को उनके ऑफिस में एक नोट मिलता है एक साइड नोट I would like to say I gave it my all. I am very sorry to let down all the people that put their trust Well, in that me. went dark. I fought for a long time, but today I gave up as I could not take any more pressure. I have failed as an entrepreneur. This is my sincere submission. I hope someday you will understand, forgive and pardon me. अब ऑन द सर्फेस कैफे कॉफी डे बहुत ही सक्सेसफुल चेन देश भर में 1700 कैफेज हैं हजारों वेंडिंग मशीन्स हैं That's the issue. That's the issue. You can't just blow up. Again, it's this day and age, this influencer blow up type of moment where things will start making a ton of money. So it works for like the Stanley Cup nonsense, the Labubu nonsense, the rice patty nonsense, the like all these trends which are like something that could be manufactured, sold bulk, simple. But when it comes to a chain like this stuff needs to grow organically. Just a massive push is incredibly bad for a chain like this. Absolutely, because like Carl's Jr.'s, McDonald's, In-N-Out, even Chick-fil-A, a lot of the main like fast food chains in the US all started with one building. And then when they could afford another building, they opened another one like a town over. Like right now, there's a pizza factory. And I think, well, it started up the mountain. And now they have like, I think 4 different locations in 4 different cities. But you can't just sprout everywhere. It is crazy. और एक ऐसी ब्रांड है which has a strong recognition. So then why would one of India's popular entrepreneurs write a note जहाँ वो कहते हैं कि he has failed? ये समझने से पहले we should go back to the time जिससे पहले सिद्धार्थ कॉफी किंग बने वीरप्पा गंगैया सिद्धार्थ हेगड़े 1959 में पैदा हुए एक ऐसे परिवार में जिसकी लेगेसी में ही कॉफी है कई सदियों से ये परिवार कर्नाटका के मलनाड रीजन में कॉफी कल्टीवेट कर रहे हैं जब तक सिद्धार्थ पैदा हुए इस परिवार में पैसे की कमी नहीं थी चिकमगलुरु डिस्ट्रिक्ट से सिद्धार्थ फिर कॉलेज के लिए सेंट एलोशियस कॉलेज जाते हैं
क्योंकि उनके परिवार के पास पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए वो कॉलेज कई बार गाड़ी और बाइक से आते थे, मानो कि वो उधर के स्टूडेंट ऑफ द ईयर हो। पर कॉलेज के दौरान सिद्धार्थ बिकेम फैसिनेटेड विद कम्युनिज्म एंड मार्क्सिज्म। प्लांटेशन वर्कर्स की गरीबी देखकर सिद्धार्थ का मानना था कि कम्युनिज्म ही इनइक्वालिटी को हटा सकता है। अब कॉलेज के दौरान इन प्रिंसिपल से जरूर वो इफेक्टेड हुए, पर उनका ये भी मानना था कि कैपिटलिज्म एंड मेकिंग मनी इज गुड। इसीलिए अगस्त 2016 में Like, okay, communism, Marxism, capitalism. I mean, he's literally learning everything, and there's nothing wrong with learning every single one. But he obviously went the route of capitalism because he found out that worked for him. Oh yeah, that happened to Stanley Cup thing. Yeah. I mean, it made a ton. I remember my neighbor's girl returned iPhone to buy Stanley Cup. Oh. Yeah, those trends go insane. Like that. If I'm ever flaunting something to sell, tell me to shut up. Because the thing is just like these things are trends. Like, I know there are things I enjoy, but I'll never be like, oh my gosh, I just got this new thing. Look at it. Like, it's just like, no, that's ridiculous. But people find that stuff entertaining. जब IIT कानपुर में एक इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप समिट हुआ, सिद्धार्थ ने बोला कि I was really influenced by Karl Marx. Karl Marx principles were fantastic. And I believe those days capitalists are crooks. And still, I believe we are not very good people. So, but after reading the Russian history, I thought I can be a Robin Hood, take the capital from the rich and give to the poor. कॉलेज के बाद इमीडिएटली उन्होंने फैमिली का कॉफी बिजनेस ज्वाइन नहीं किया। इंस्टेड ही एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ स्टॉक ब्रोकिंग। वो बैंगलोर शिफ्ट होकर स्टॉक मार्केट में काम करने लगे और इवेंचुअली उन्होंने अपनी कंपनी क्रिएट करी, सिवान सिक्योरिटीज। कॉफी के बिजनेस में बहुत पॉलिटिक्स थी और सरकार के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, एंड ही डिडंट वांट एनी ऑफ दैट। फॉर एग्जांपल, इंडिया में कॉफी का बिजनेस कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया मैनेज करता था। Yeah, but the thing is, like, the thing with capitalism, communism, socialism, Marxism, all of those, in the end, it's not the policies that are the bad. It's the people that are bad. And I believe the one that allows an individual to get further in society is more preferable than one that allows one person to be controlled at everything. Of course, if you do get far enough in like capitalism, you can be someone who's in control of everyone, like of everything. You're like a industry that's able to buy up other smaller industries. But at the same time, it's just like, which one gives you the opportunity? And I like, again, capitalism is the one that gives me an opportunity to have a voice and speak. Well, I guess at least in the US, it gives me that opportunity because there are people in the US who will speak such heinous things that would not be allowed anywhere else in the world. But it's allowed on US soil because free speech for some reason. ये एक सरकारी बोर्ड था, पर हर कॉफी एस्टेट को अपनी कॉफी इसी कंपनी को बेचनी पड़ती थी। इंडियन कॉफी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी सोवियत यूनियन को जाता था, एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत, जहां इंडिया सोवियत यूनियन को कॉफी भी बेचेगा और सोवियत यूनियन पैसे के बदले इंडिया को कई और चीजें देगा जिसको हमारे देश की जरूरत थी। इस अरेंजमेंट की वजह से कॉफी एस्टेट्स को तो कॉफी इमीडिएटली बेचनी पड़ती थी और उनको छोटा मोटा एडवांस भी मिलता था, पर पूरी पेमेंट 2-3 साल बाद आती थी जब सोवियत यूनियन और इंडिया की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती थी। जबकि स्टॉक मार्केट रिलेटिवली क्लीन थी। लेट 80s आते आते सिद्धार्थ का सिक्योरिटीज बिजनेस अच्छा करने लगा। वो बहुत जल्द एडवांटेज उठाते उन स्टॉक्स की जिनका दाम एक एक्सचेंज पर कम होता पर दूसरे एक्सचेंज पर ज्यादा होता। दिस इज अ क्लासिक फॉर्म ऑफ आर्बिट्राज, बाय लो सेल हाई। 1988 में सिद्धार्थ ने शादी करी मालविका कृष्णा के साथ, जो एक सीनियर कांग्रेस लीडर और एक सिटिंग एमएलए SM कृष्णा की बेटी थी। इस शादी के बाद सिद्धार्थ का उठना बैठना कर्नाटका के टॉप पॉलिटिकल और सरकारी सर्कल्स में हो गया। 1988 और 1991 के बीच स्टॉक ब्रोकर्स के लिए एक बूम था और इस पीरियड को कहा जाता था हर्षद मेहता ईयर्स। वॉल्यूम्स वर राइजिंग एंड मनी वाज फ्लोइंग फ्रीली। पर 1992 में पता चलता है कि हर्षद मेहता एक्चुअली मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे थे। जैसे ये स्कैम खबरों पे आया, पूरी मार्केट डूब गई। बट दिस टाइम सिद्धार्थ वाज स्लाइटली फॉर्चुनेट। वो बेंगलुरु में बैठे हुए थे और एक IT सर्विस कंपनी इन्फोसिस अपना IPO कर रही थी ताकि उनको 13 करोड़ रुपए मिल जाए। कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने सिद्धार्थ को इस बारे में टिप दे दी। उन्होंने उनकी एडवाइस लेकर इस कंपनी के 60,000 शेयर्स खरीद लिए एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। सिद्धार्थ ने इस इन्वेस्टमेंट से कई पैसे कमाए एंड ही डेवलप फ्रेंडशिप विद वन ऑफ द फाउंडर्स, नंदन निलेकन, जिन्होंने इवेंचुअली सिद्धार्थ के कॉफी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करी। पर आज की दुनिया में समवन हु अंडरस्टैंड्स टेक एंड बिजनेस हैज अ सिग्निफिकेंट अनफेयर एडवांटेज इन द वर्ल्ड ऑफ AI। वन एग्जांपल इज लेवल 0, हु इज अ डच कोडर एंड सोलोप्रेन्योर। सोलोप्रेन्योर का मतलब ही इज just a team of one, and he has built multiple businesses just by being very good at coding and very sharp in business. So you need to know business. You absolutely need to know business. Did I read your comment? Hang on.
me see. Do you watch vids on dark historical reality? I don't think I've ever seen any, or maybe I haven't, just wouldn't know. Because is that a subgenre, or is that a YouTube page, or what is it exactly? I don't know. I don't know. Oh my gosh. Bro, watch Sharma show? Maybe. I don't know what that is either. When it comes to YouTube, I normally I follow recommendations that if I absolutely love the video, then I'm like, I need to subscribe to this person. Like Mohak Mangal. Yeah, I think I said his name right. Mohak Mangal. I watched like one video of his. I'm just like, oh my gosh, this guy's actually he's insightful. He's entertaining. He's actually got information to go there. And like, yeah, I'm checking it out. Then I subscribe to him. That's just how I do it. I normally don't know anything. I don't like follow recommendations or things like that because I work for a living, so I'm always running around. I mean vids which discuss history regarding uncomfortable topics. Yeah, I have seen a few things like that. But not always. सिद्धार्थ रियलाइज कि इस मार्केट में मैनिपुलेशन करना बहुत इजी है एंड ही वांटेड अ रिलेटिवली क्लीनर मार्केट व्हिच इज व्हाई उनका अटेंशन वापस गया अपने फैमिली के कॉफ़ी बिजनेस में और उनका मानना था कि इस मार्केट में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब सिद्धार्थ तो मानते हैं कि इस मार्केट में पोटेंशियल बहुत है पर पोटेंशियल के साथ साथ इसमें रेगुलेशन भी बहुत है। इसी वजह से 1992 में कई कॉफ़ी एस्टेट ओनर्स दिल्ली जाते हैं सेक्टर की लिबरलाइजेशन के लिए। इसमें कर्नाटका के कई प्लांटर्स हैं जो अपना आर्ग्यूमेंट देश के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह के सामने रखते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे रेगुलेशंस कम होने लग जाती है। सबसे पहले ग्रोवर्स को इजाज़त दी जाती है कि 30% प्रोड्यूस वो अब डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेच सकते हैं और बस 70% इंडिया की कॉफ़ी बोर्ड को उनको बेचना होगा। 30% फिर 70% बन जाता है। इस वजह से पूरी इंडस्ट्री बदल जाती है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, कैश फ्लो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है एंड री इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस इज पॉसिबल। इसी वजह से दिसंबर 1993 में सिद्धार्थ अमालगमेटेड बीन कॉफी ट्रेडिंग कंपनी ABCTL बनाते हैं। ये एक एक्सपोर्ट कंपनी है जहां सिद्धार्थ कई छोटे ग्रोवर से कॉफी खरीदते हैं और फिर इसको डायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट्स में बेचते हैं। इसका एकदम डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। जहां टिपिकली लोगों को हर किलोग्राम के लिए 24 से 25 रुपए मिलते थे, ABCTL को 55 रुपए का प्राइस मिल जाता है इंटरनेशनल मार्केट्स में। अगले 2 साल ग्लोबल कंडीशंस और सिद्धार्थ को फेवर करती है। सबसे पहले ब्राजील में खराब वेदर की वजह से उधर का कॉफी सप्लाई बर्बाद हो जाता है, जिसकी वजह से सिद्धार्थ को कुछ डील्स में 180 रुपए पर केजी मिलते हैं। ABCTL की इतनी तरक्की होती है कि पूरे चिकमगलुरु डिस्ट्रिक्ट में ये कंपनी प्राइस सेटर बन जाती है। दूसरे लोग देखते हैं कि इस कंपनी का क्या दाम होगा, पर उसी हिसाब से वो अपने दाम रखते हैं। फिर सिद्धार्थ दूसरे ग्रोवर्स को ट्रेनिंग देने लग जाते हैं कि कौन सी बीन्स का क्या दाम है इंटरनेशनल मार्केट में और अपनी क्वालिटी बढ़ाने के उनको कौन सी फार्मिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी होगी। पर सिद्धार्थ ये भी जानते हैं कि एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत रिस्की गेम है, क्योंकि अगर दुनिया में कुछ भी हो जाए तो इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर पड़ता है। इस वजह से उनको आइडिया आया कि जब तक वो अपनी ब्रांड बनाएंगे नहीं ना, तब तक ये बिजनेस रिस्क जाएगा नहीं। जब सिद्धार्थ ने अपने दोस्तों को आइडिया बताया कि वो एक कॉफ़ी का कप बस 25 रुपये में बेचना चाहते हैं, कई लोगों ने उनका मजाक बनाया, क्योंकि उस समय बेंगलुरु में फिल्टर कॉफ़ी का एक कप आपको बस 5 रुपये में मिल जाएगा। एक एसोसिएट ने उनको बहुत ब्लंटली पूछा कि भाई कोई 5 गुना ज़्यादा दाम क्यों देगा कॉफ़ी के लिए, पर सिद्धार्थ का इंस्टिंक्ट कहता था दैट दिस इज पॉसिबल। Because coffee's delicious. I mean, not Starbucks. Starbucks is absolutely disgusting. It's funny because when I was on my traveling through, like we were doing like the Golden Triangle or whatever it's called, going to Taj Mahal and everything. We were driving through and we stopped at like this little market stall on the side. There was like several locations of McDonald's and other things. And of course I saw a Starbucks and it was just like, even here, I can't get away from that location. Even here. Of course I didn't go in. वो कई समय से ग्लोबल कॉफी कंपनी स्पेशली यूरोपियन ब्रांड चीबो को स्टडी कर रहे थे, जो अपने रिटेल आउटलेट्स के जरिए कॉफी पाउडर और कॉफी बेचती। इसी वजह से 1995 में सिद्धार्थ ने कई छोटे रिटेल आउटलेट्स जिनका नाम था फ्रेश और ग्राउंड को लॉन्च करे। ये स्टोर्स मोस्टली रेजिडेंशियल नेबरहुड्स में थे। अब ये एक्सपेरिमेंट चल ही रहा था, बट सिद्धार्थ रियलाइज दैट समथिंग इज मिसिंग। वो एक ऐसी जगह बनाना चाहते थे जहां लोग उनकी ब्रांड को एक्सपीरियंस करेंगे। और 1996 में जब वो सिंगापुर गए ट्रिप के लिए, दिस चेंज एवरीथिंग। He experienced डिनर something के there. बाद जब वो होटल वापस जा रहे थे, सिद्धार्थ की नजरें एक ऐसी जगह पर पड़ी जहां लोग कंप्यूटर्स के साथ बैठकर काम कर रहे थे और एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे। Coffee उनके shop. पास आइडिया है कि व्हाई कैन नॉट ही क्रिएट अ सिमिलर एक्सपीरियंस इन इंडिया। वो एक इंडिया में ऐसा कैफे क्यों नहीं खोल सकते जहां लोग इंटरनेट यूज कर सके, कॉफी पी सके और Internet cafe, you target the youth. I mean, I remember, so the only time I actually ever went to Starbucks was when my brother worked there. Every time I'd walk in
for my 8 shots of free drink, because I always request my brother to make it for me, you know, because he was nice like that. Is nice like that, but he no longer works there. I'd go in every single time. There were people there sitting on their computer playing League of Legends. No schoolwork, no nothing else. It was always League of Legends. That was it. That was it. They were only playing games. Oh my gosh. The poop coffee. I'm not going to taste that poop coffee. I don't care if it's the cat poop or the elephant poop. I am not tasting the poop coffee. I am not going to spend 50, 60, $100 on a single glass of something that went through an animal's system. दूसरे के साथ हैंग आउट कर सके. बट दिस वाज अ रेडिकल आइडिया क्योंकि उस जमाने में लोगों के घरों में इंटरनेट ही था. सो इसीलिए 11 जुलाई 1986 में कैफे कॉफी डे का पहला आउटलेट खुला सेंट्रल बेंगलुरु की ब्रिगेड रोड पर, और इस कैफे में इंटरनेट अवेलेबल था. सीसीडी में आपको इटालियन स्टाइल ड्रिंक्स जैसे कैपेचिनोज, एस्प्रेसोस और लाटेज मिलती. कई चीज़ें जिसको इंडियंस ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था. ये कैफे एक इंस्टेंट हिट बन गया. अगले It's like everyone transitioned from wearing like traditional garb to more modern with the occasional sprinkle of traditional. सालों के दौरान सिद्धार्थ ने फिर कई आउटलेट्स खोले और 2001 तक तो देश में 18 कैफेज खुल चुके थे, मेनली बेंगलुरु, चेन्नई और मैसूर में. पर सिद्धार्थ अभी भी इस कंपनी को फैमिली बिजनेस की तरह चला रहे थे. मोस्टली एम्प्लॉइज उनके फैमिली एसोसिएट्स थे और दूसरे कुछ दोस्त थे. जब भी कोई यंगस्टर उनके होम टाउन से नौकरी की बात करता, वो उनको नौकरी देते थे. एंड दिस इज द स्टेज व्हेन नरेश मल्होत्रा एंटर्स द पिक्चर. नरेश ने पहले विजय माल्या के साथ काम किया था बर्जर एंड पेंट्स जैसी कंपनीज को सेटअप करने के लिए, और फिर बाद में केपीएमजी के ऑपरेशन सेटअप करने के लिए. 2001 में नरेश सीसीडी के सीईओ बन गए. कंपनी में 70 से 80 लोग थे, बट द नंबर्स रियली शॉक्ड हिम. कंपनी के 20 से कम आउटलेट्स थे, पर बिजनेस डूब रहा था. फिर उन्होंने सिद्धार्थ को अपना प्लान बताया कि हम 18 में से 10 कैफेज को बंद करेंगे और मोस्ट एम्प्लॉइज को फायर कर देंगे. सिद्धार्थ इस चीज को सुनकर दंग रह गए. उनको लगा था कि नरेश उनको एक्सपेंशन एडवाइस देंगे, पर इधर वो उनको उल्टा एडवाइस दे रहे हैं ऑपरेशंस बंद करने के लिए. पर नरेश ने जब अपनी थिंकिंग शेयर करी, सिद्धार्थ इवेंचुअली एग्री, जिसके साथ कई अनप्रॉफिटेबल कैफेज बंद कर दिए गए पर एक्सेस स्टाफ को फायर कर दिया गया. अगले 6 सालों के दौरान नरेश ने सिस्टम्स, प्रोसेसेस और फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्रिएट किया कंपनी में. 6 साल बाद नरेश मल्होत्रा लेफ्ट द कंपनी after stabilizing the business, जिसके बाद CCD started expanding across India like Delhi and Mumbai. 2004 तक 150 कैफेज खुल गए थे और 2008 तक 560. जैसे ही एक्सपेंशन आया वैसे कंपटीशन भी बढ़ने लग गया फ्रॉम ब्रांड्स लाइक बारिस्टा, कोस्टा कॉफी एंड कॉफी बीन एंड टी. मिड 2000s आते आते सिद्धार्थ started preparing for an IPO and he became the face of the company obviously because he's been the founder. एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि उनका लीडरशिप स्टाइल क्या है, he said I believe in rolling up my sleeves and working. और इसी माइंडसेट से सिद्धार्थ ने CCD की कंपनी चलाई. नरेश मल्होत्रा की एग्जिट के बाद कैफे कॉफी डे एक्सपैंड करने लगा अग्रेसिवली. रेवेन्यू ने तो 250 करोड़ रुपए क्रॉस कर दिए, पर फाइनेंशियल फाइलिंग ने दिखाया कि बिजनेस ग्रुप लॉस में था क्योंकि उन्होंने इतने ज्यादा पैसे खर्च करे एक्सपेंशन के लिए. बस कैफेज पर फोकस करने की बजाय CCD का बिजनेस ग्रुप कई चीजों पर फोकस करने लगा. होल्डिंग कंपनी थी कैफे डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड, और ये होल्डिंग कंपनी सारे डिफरेंट बिजनेसेस को मैनेज कर रही थी. इस एक्सपेंशन को फाइनेंस करने के लिए कर्ज भी बढ़ा और उसके साथ साथ इंटरेस्ट कॉस्ट भी. फाइनेंशियल ईयर 2012 में लॉन्ग टर्म बोरिंग 1600 करोड़ थी. 3 साल बाद ये नंबर 3500 हो गया. कई छोटे छोटे बिजनेसेस तो पैसा कमा भी नहीं रहे थे, पर उनको पेरेंट कंपनी से और फाइनेंसिंग मिलती जाती. सिद्धार्थ का मानना था कि ये सारे बिजनेसेस इवेंचुअली वैल्यूएबल लॉन्ग टर्म एसेट्स बनेंगे. कई बार सिद्धार्थ की एक कंपनी दूसरी कंपनी को कई करोड़ की उधार दी थी. बेसिकली लेफ्ट पॉकेट से पैसा लिया और राइट पॉकेट में रख दिया. ओरिजिनली सिद्धार्थ का प्लान था कि जो उनका प्रॉफिटेबल कैफे बिजनेस है ना, उसको वो IPO कर देंगे, पर क्योंकि दूसरे बिजनेसेस की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, उन्होंने डिसाइड किया कि वो पूरी होल्डिंग कंपनी का IPO करेंगे. एम था मार्केट से करीब 1000 करोड़ रुपए उठाना. इन 1000 करोड़ में से आधे से ज्यादा पैसा तो कर्ज चुकाने में जाएगा. इसलिए कई एनालिस्ट ने लिखा कि कंपनी का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है, कर्ज की लेवल्स इतनी ज्यादा हैं और रिटर्न्स इतनी कमजोर हैं, इसलिए इसके IPO में इन्वेस्ट क्यों ही करना. अब IPO में कई इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट दिखाया तो, पर ओपनिंग के बाद इशू प्राइस से स्टॉक का प्राइस कम था, which shows कि मार्केट का इतना कॉन्फिडेंस नहीं था इस कंपनी में. पर IPO के बाद भी बोरोइंग्स नहीं रुकी. नई कैफेज खुलते गए और रियल एस्टेट के बिजनेस को चलाने के लिए भी कर्ज उठाना ही पड़ा. इन लोन्स के लिए सिद्धार्थ कंपनी के शेयर्स एज कोलैटरल देने लगे, जिसका मतलब था दैट ही वाज बेसिकली गिविंग हिज कंपनी अवे अगर थिंग्स गो रॉन्ग. इसके साथ साथ इंडिया का बैंकिंग एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा था. पहले बैंक्स कंपनीज को इजाजत दे देते थे अगर वो नए लोन्स लेना चाहते पुराने लोन्स को चुकाने के लिए. जब RBI गवर्नर रघुराम राजन ने एसेट क्वालिटी रिव्यू का प्रोसेस स्टार्ट किया, ये चीज करना बैंक के लिए इतना आसान नहीं था. इस वजह से सिद्धार्थ लोन नहीं उठा सकते थे पिछले लोन्स को चुकाने के लिए. सितंबर 2017 में Like, that's the thing. He's doing it as a company, but in the US, that's what people do. That's how most people actually live their life. They will
spend on a credit card, and when that credit card gets maxed out into the point where they can no longer use it, they get another credit card to pay off that credit card. And then when that happens to that credit card, they get another credit card. And then they find out that they won't be able to pay it off for their entire life. They have to go into collections, or they have to mortgage everything away. They have to lose everything to the banks. Like, so many people ruin their lives just constantly getting stuck in debt. That debt loop that people get stuck in. I don't know why, but there's something about having a credit card that makes people think that money means now, when it's literally fictitious and it's a loan. The credit cards should be seen, well, you're taking it on credit, but a lot of people think credit means something else. It's a loan. A credit card is basically a loan. डिपार्टमेंट ने कैफे कॉफी डे लोकेशन से सिद्धार्थ के घर में कई रेड करे। उनका कहना था कि वो टैक्स इरेगुलरिटीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसी वजह से कुछ दिन के अंदर ही स्टॉक 10 से 20% गिर गया। अब एज ए कंज्यूमर आपको इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि 1700 कैफे तो अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं, पर बिहाइंड द सीन्स things were really wrong, and suddenly 2018 में कुछ हुआ जिससे सिद्धार्थ के पैरों तले जमीन खिसक गई। In an emergency move, the government moved in today to avert a potentially huge crisis at a financing company that could hit the savings of ordinary folks. The current management of IL and FS has been suspended, and a new 6-member board that includes Uday Kotak takes over. इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज IL&FS एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी थी जो मानो बैंकिंग सिस्टम में एक मिडलमैन थी। वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक से पैसा बोरो करते और कई रोड्स और हाईवेज प्रोजेक्ट्स को ये पैसा देते। अब कई समय से IL&FS की लोन बुक हजारों करोड़ों तक आ गई, but this company hadn't managed its loans well. इस वजह से IL&FS की कई कंपनीज अपना पैसा चुका ही नहीं पाई, जिसकी वजह से देश के पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में एक रेड अलर्ट आ गया। IL&FS की क्रेडिट रेटिंग डिफॉल्ट स्टेटस बन गई, जिसका मतलब Sponsored by Klarna? I have no clue. I've never used Klarna. I think it's like one of those buy now, pay later situations. Again, it's another loan. It's another loan, and you get an absorbent amount of costs. Yeah, I have no say. I think it's because it's talking about finance right now that you're probably gonna get financial ads. That's just how it works. That's just how the algorithm works. It hears money and it pushes money into people's faces. That's how it works. था that this company is very unsafe. रेटिंग एजेंसी ICRA ने कंपनी की रेटिंग ही अब घटा दी है। पिछले 2 महीने में ये दूसरी बार हुआ है जब कंपनी की रेटिंग घटाई गई है। ये न्यूज जैसे सामने आई, कई इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स पैनिक करने लग गए और वो अपना पैसा उन म्यूचुअल फंड से हटाने लग गए जिन्होंने IL&FS की इन्वेस्टमेंट्स में पैसे लगाए। इसका इफेक्ट इतना बड़ा था कि कोई भी कंपनी जो IL&FS की तरह लगती थी उसकी हालत पतली हो गई, विच इंक्लूड्स बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, टाटा कैपिटल, L&T फाइनेंस और महिंद्रा फाइनेंस। जैसे IL&FS अपने लोन्स पर डिफॉल्ट करने लग गई, एक रिपल इफेक्ट क्रिएट हो गया पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सिद्धार्थ नए लोन्स ले रहे थे अपने पुराने लोन्स को चुकाने के लिए। इसको कहा जाता है एवरग्रीनिंग लोन्स। जैसे सिद्धार्थ ने 2018 में करीब 3,500 करोड़ रुपए बोरो करे 2,800 करोड़ के लोन्स चुकाने के लिए। अब क्योंकि सिद्धार्थ का एक बहुत अच्छा करिश्मा था और बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे बैंकर्स के साथ, उनको हर बार एक नया लोन मिल जाता। फॉर एग्जाम्पल, एक बार उनको पता चला एक बैंक एग्जीक्यूटिव जिससे उनको लोन चाहिए, उनकी शादी होने वाली है। इसीलिए सिद्धार्थ ने उस बैंकर को बोला कि क्यों ना आप अपनी शादी सिराय रिजॉर्ट्स में कराओ, जिसका ओनर मैं ही हूँ। इस वजह से सिद्धार्थ को कभी लोन्स की कमी नहीं थी। पर IL&FS के क्राइसिस के बाद सारे बैंकर्स डर गए। इस वजह से सिद्धार्थ के नए लोन्स मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो और एक क्रैश सामने आ गया। माइंडट्री एक IT फर्म है इन्फोसिस की तरह, जिससे सिद्धार्थ कई सालों से एसोसिएटेड थे। कई साल पहले उन्होंने बस 45 करोड़ इन्वेस्ट करे थे, पर इस बिजनेस की वैल्यू अब बहुत ज्यादा थी। सिद्धार्थ ने ही इस कंपनी को अपना पहला ऑफिस भी दिया था। इनफैक्ट कंपनी के एक को फाउंडर ने कहा था कि मैंने फ्राइडे को विप्रो से रिजाइन। Cafe Coffee Day owner could have been saved, but just bad timing. I think it was bad financing, honestly. Like you can't constantly take a loan. Eventually it needs to turn a profit. Eventually it does. But for some reason he just kept wanting to open locations and kept wanting to you have to bring up the price. You have to bring up the price. You have to find exactly what you need to do in order to cut costs and formulate a profit, because the company doesn't exist without making a profit. It just doesn't. I mean, that's why a lot of things, like look at Hollywood. Hollywood has to take a lot of things as a loss because Hollywood is basically a loss leader at this point, where everything is completely taken at a loss, and then it's like, oh, we didn't make any money this time around, but because they can't make any money this time around. किया और मंडे मॉर्निंग तक मैं सिद्धार्थ के There has to ऑफिस be a काम करने profit. लगा। सिद्धार्थ ने अपना ये ऑफिस हमें 5 महीने के लिए दिया बिना किसी रेंट के। सिद्धार्थ का माइंडट्री में 21% स्टेक की अब वैल्यू थी 3,000 करोड़ रुपए, और वो चाहते थे कि वो पूरे स्टेक को बेच दें ताकि उनकी मेन कंपनी सर्वाइव कर पाए।
इसीलिए अगले 6-7 महीने के दौरान वो कई प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स के पास गए। कई कंपनीज एक शेयर के लिए 1000 रुपए देने के लिए भी राजी थी, जिसका मतलब था कि उनको 3000 से 3400 करोड़ मिल सकते हैं। पर इन नेगोशिएशंस के दौरान कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती जाती। कभी उनको माइंटी की मैनेजमेंट से अप्रूवल नहीं मिलता, कभी फाइनल प्राइस सेट नहीं होता, और कभी डील की कंडीशंस अप्रूव नहीं होती। बट सिद्धार्थ वाज ऑन अ क्लॉक, ही हैड टू सेल क्विकली। पर मार्च 2019 में फाइनली L&T को उन्होंने अपना स्टेक बेच दिया, जिससे उनको 3200 करोड़ रुपए मिले। और ये सारा पैसा उनके लोन को चुकाने के लिए गया। वो अपने दूसरे बिजनेसेस को बेचने के लिए भी राजी थे, चाहे उनके IT टेक पार्क्स का बिजनेस हो या फिर वेंडिंग मशीन का। इनफैक्ट कोका कोला उनका वेंडिंग मशीन का बिजनेस खरीदना भी चाहती थी, जिसके लिए सिद्धार्थ ने 8000 से 10,000 करोड़ रुपए मांगे। बट कोका कोला फेल्ट दैट द प्राइस इज टू हाई। अब सिद्धार्थ की होल्डिंग कंपनी का डेट 7000 करोड़ से ज्यादा हो गया था। कई सालों से सिद्धार्थ को No, Coca-Cola was just being cheap. Let's be honest. They go to India, they want it for cheap. They're not willing to pay American prices for an Indian product. That's why. That's why. कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलते ही जा रहा था। जब उनके पास पैसे नहीं थे, ही मैनेज्ड टू सेल माइंट्री। जब उनका एक बैंक से लोन नहीं मिलता, दूसरे बैंक से उनको लोन मिल जाता। बट नाउ ही हैड नोवेयर। 29 जुलाई 2019 में सिद्धार्थ गायब हो गए। अगले दिन एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई और उसके बाद सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुए। अटकलें लगाई गई कि उनकी बॉडी नदी में मिलेगी। कंपनी के हेडक्वार्टर्स में कई न्यूज रिपोर्टर्स आ गए। पूरी तरह पुलिस तैनात की गई और हर एम्प्लॉय का इंटरव्यू लिया गया। फाइनली सिद्धार्थ के ऑफिस में उनको एक नोट मिला। ये नोट लिखा गया था घटना के बस 2 दिन पहले, 27 जुलाई को। उनको ये भी बोला गया दैट ही वाज अंडर सीनियर प्रेशर फ्रॉम मनी लेंडर्स एंड टैक्स अथॉरिटीज। 31 जुलाई को उनकी बॉडी नदी में पाई गई। सिद्धार्थ ने अपने नोट में बोला दैट द एसेट्स आर ग्रेटर देन लायबिलिटीज ऑफ हिज कंपनी। इन सम वेज दैट इज ट्रू। कैफे चेन थी, कॉफी प्लांटेशन थे और एक ग्लोबल विलेज टेक पार्क भी था। पर इनमें से कई एसेट्स ऑलरेडी एज कोलैटरल दे दिए गए थे बैंक्स को। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि एक्चुअली एक हिडन बर्डन भी था करीब 3500 करोड़ का। सिद्धार्थ की मौत के बाद उनकी बीवी मालविका ने कंपनी की लीडरशिप ले ली। जब उन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया तो उसका डेट 10,000 करोड़ रुपए था। सबसे पहले शी स्टार्टेड सेलिंग कंपनीज एसेट्स, जैसे ग्लोबल विलेज टेक पार्क 2700 करोड़ रुपए में बेचा गया। कई अनप्रॉफिटेबल कैफेज बेच दिए गए, जिस वजह से 2019 में जहाँ CCT के करीब 1700 कैफेज थे, 4 साल बाद ये नंबर बस 450 हो गया। 2025 आते आते CDEL का डेट बस 370 करोड़ था। 2016 में सिद्धार्थ ने कहा था कि वो रॉबिन हुड बनना चाहते हैं। बट दैट्स द चैलेंज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। सबका एक विजन होता है, बट व्हेन थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, you need to know when to stop. And Siddharth did not realize this when to stop. And this is something that Siddharth struggled with. Hopefully you like this video. This video was sponsored by Scalar School of Technology. Don't forget. You know, I was thinking this was going to be more funny, more enjoyable, but the fact that it started with him walking away and disappearing, and it's just like, oh, okay. I mean, it does have the thumbnail with him being like, you know, he took his own life, but I was like, okay, let's find out. Let's find out. Oh my gosh. It's just like, what the heck? What the heck? That was dark. That was dark. But it is insightful. It is insightful. So he did have a vision. He did slowly build it. I was thinking it was going to be one of those that popped up out of nowhere. But no, he did slowly build it up. But it was never truly functional. It never actually seemed to work. Occasionally, like that's why he had to bring someone in order to close down certain locations, fire certain employees. Like people... It's all well and good to want to hire every single person, but if they're not willing to work, you can't have them employed. That's just how it is. And he seemed to actually want to help everybody, even if they didn't want to actually work for it. That's the thing. That's the issue with having like that a socialism kind of mindset where you want to give everyone a chance because everyone deserves a chance. Not everyone deserves a chance. Not everyone deserves a chance. People need to work and prove that they can earn that chance. But at least that's how I feel. That's how I grew up in my society. So it's just like, yeah, that makes sense. That makes sense. You just have to work for it, and you hire on everybody that they just stand around doing nothing, getting paid. I mean, that's the entire like roads system in the U.S. It's like, whole construction's a complete sham show. Coca-Cola had monopoly for many years, but now Kampa Reliance is only competition in India. I mean, I don't know. I know Coca-Cola bought out Limca, and I like Coca-Cola. I like Coca-Cola. So, well, I like Diet Coke. So I'm not going to complain about me being able to go into a shop in India and actually be able to get my soda. I don't mind that. If Pepsi was everywhere in India, I'd probably hate India. I'm gonna be honest. I'd probably hate India. I'd be like, why the heck do you have Pepsi? Coke is number 1. You guys got a video?
don't forget to like and subscribe. Wait, Sandra.